12th Science. Today I am going to discuss a very important topic of solution, Van 't Hoff factor. You observe last 5 years question papers and definitely alternately question from Van 't Hoff factor comes. Now before discussing it, I will revise once again colligative properties. First one is relative lowering of vapor pressure, that means delta P upon P naught is equal to WB upon MB into WA upon MA. Second one is elevation in boiling point. Delta TB is equal to KB, that is alubiscopic constant into molality. Third, depression in freezing point. Delta TF is equal to KF into molality. And the last but not the least is osmotic pressure. Pi is equal to CRT. Now, in all the 4 colligative property, we can calculate molar mass of solute, and by observing them we can say colligative property is inversely proportional to your molar mass of solute. Now comes abnormal molecular mass. ये बताने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि हम चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से मॉलिकुलर मास निकाल सकते हैं, बट बेस्ट वे टू डिटरमाइन मॉलिकुलर वेट ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल्स, जैसे आपके पॉलीमर्स हुए, एग्जाम्पल प्रोटीन हुआ, तो हम यूजली यूज़ करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, बिकॉज ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं. अदरवाइज डेल्टा टी एफ एंड डेल्टा टी बी इज़ वेरी वेरी स्मॉल for macromolecules and difficult to calculate. So if a question comes, which is the best method to calculate molecular weight of solute, which property is best? Your answer is osmotic pressure. Now one more thing, अगर आप molecular weight determine करते हैं colligative property से, तो आपके 2 conditions लगती हैं. पहला, solution is very very dilute. Solution is very very dilute. It means it should follow Raoult's law and number of moles in denominator is very very small and it can be neglected. And the second thing, solute should neither undergoes association or dissociation. Now ये चीज़ हम अब आपको पहले पढ़ाएंगे. देखिए, हमने अभी तक न्यूमेरिकल सॉल्व किए जिसमें आपने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ निकाली, पर आप अगर प्रीवियस जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उनको देखें तो आप देखेंगे वी हैव टेकन ऑल नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक यूरिया, ग्लूकोज, शुगर. अब बच्चे, हम अगर लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, तो यहाँ हम देखते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स दे डिकम्पोज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन. ये सारे एक्वस सॉल्यूशन में हो रहे हैं. आई डिडंट राइट इट, बट you should remember these all are taking in aqueous solution. So NaCl will dissociate into Na plus Cl minus. Then CaCl2, it will dissociate as calcium ion plus 2 chloride ion. So total number of particles are 3. Aluminium sulfate will dissociate as 2 aluminium particles and 3 sulfate particles, and similarly K4FeCN6 will dissociate as 4 potassium ion and 1 FeCN6 4 minus. It is a coordinate compounds or we can say a कॉम्प्लेक्स आयन एंड इसलिए ये डिसोसिएट नहीं होगा, जो हम फर्दर कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ेंगे. अभी के लिए वी शुड रिमेंबर देयर आर 5
particles. Now, as you know, by definition, colligative properties are the properties which depends only on the number of particles. तो आपके जो ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ग्लूकोज, शुगर, ये ना तो एसोसिएशन करते हैं ना डिसोसिएशन करते हैं, बट हमारे जो ये इलेक्ट्रोलाइट्स हैं ये डिसोसिएट हो रहे हैं, और अगर ये डिसोसिएट हो रहे हैं तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो आप 1 एज्यूम कर रहे हैं कि हमने 1 मोल डाला है, इट हैज़ बीन इंक्रीज टू 2, 3, 5 in the following cases, and thereby colligative property आपकी क्या होगी, बढ़ जाएगी, because number of particles are increasing. Let's see, आप देखेंगे in all such cases जहाँ पे आपके डिसोसिएशन हो रहा था, observed colligative property हमेशा आपकी नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से ज़्यादा आएगी. वहीं पे हमने अभी बोला है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिकुलर वेट. तो मॉलिकुलर वेट आपका जो है वो कम आएगा देन टू द नॉर्मल. फॉर एग्ज़ाम्पल NaCl 0.1 मोलार ले सकते हैं, 0.1 मोलार NaCl. तो आप देखेंगे इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है बढ़ेगा 2 टाइम्स, क्योंकि पार्टिकल्स कितने डिसोसिएट हो रहे हैं, 2, और जो इसका मोलर मास है इट विल बिकम हाफ. इंस्टेड ऑफ 58.5 इट विल कम 29.25, जस्ट हाफ कम हो गया. अब बच्चे हम अनदर केस पढ़ते हैं. अभी हम बात कर रहे हैं डिसोसिएशन की, अब हम बात करेंगे एसोसिएशन की. इन सम केसेस मॉलिक्यूल्स हम 2 ले रहे हैं, बट वो सॉल्यूशन में दे विल अपीयर एज 1, हमको दिखता नहीं है, बट आप जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के हेल्प से उनका मॉलिकुलर वेट निकालते हैं तो वो आता है 2 इंस्टेड ऑफ नॉर्मल. ऐसे केस होते हैं एसोसिएशन के कारण. फॉर एग्जांपल इथेनॉइक एसिड इन अ बेंजीन, इट विल एसोसिएट एज 1 मॉलिक्यूल. 2 मॉलिक्यूल्स आपने डाले, इट विल अपीयर एज 1 मॉलिक्यूल ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. Similar is the case with benzoic acid. C6H5COH, another molecule C6H5COOH, and यहाँ पे आपके हो रहे हैं इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. आपने मॉलिकुलर वेट अगर हम नॉर्मल कैलकुलेट करें तो हम देखते हैं आपके इथेनॉइक एसिड का मॉलिकुलर वेट आता है 60, बट जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपका ड्यू टू एसोसिएशन ये बन जाएगा 120. और सिमिलरली बेंजोइक एसिड का जो कैलकुलेट नॉर्मल है 122, वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं तो ऑब्जर्व्ड आता है 244. यानी कि आपके जब एसोसिएशन का केस हो रहा है तो आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ डिक्रीज़ हो रही है, बिकॉज नंबर ऑफ पार्टिकल इज़ डिक्रीज्ड. यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, नेचुरली इट हैज़ डिक्रीज्ड. बट एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिकुलर मास, तो आपका मॉलिकुलर मास नॉर्मल मॉलिकुलर मास से ज़्यादा आएगा, जो कि हमने अभी आपको यहाँ 2 एग्जांपल्स बताए हैं. अब बच्चे आप देखेंगे when observed molar mass does not comes equal to normal molar mass, तो हम उसे कहते हैं abnormal molar mass. यहाँ पे एक नया फैक्टर इंट्रोड्यूस हुआ, Van 't Hoff factor, which is represented by I, and it is nothing but ratio of observed value of colligative property upon normal value of colligative property. It expresses the extent of association or dissociation.
अगर हम मोलर मास की बात करें, क्योंकि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कॉलीगेटिव की, तो इट विल बिकम जस्ट अपोजिट, I equals to normal molecular mass upon observed molecular mass. So अगर हमें कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ ये है और हम I के द्वारा इसे फाइंड आउट कर रहे हैं, तो हम रिलेशनशिप क्या निकालेंगे? यस, I इंटू नॉर्मल वैल्यू, तो आपका हो गया डेल्टा P अपॉन P नॉट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू I इंटू एक्स बी, delta TB is equal to I into KBM, delta TF is equal to I into KFM, and pi is equal to I into CRT. In case of dissociation, I will always be greater than 1 and molar mass will come less than normal molar mass, while in case of association I is always less than 1 and molar mass will be always higher than normal molar mass. तो आपको ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि NaCl में आपका मोलर मास, क्योंकि पार्टिकल कितने हुए 2, तो इट जस्ट बिकम हाफ. वहीं पे अगर मैं K2SO4 लिखूँ तो मोलर मास विल बिकम 1/3. While in case of associated इथेनॉइक और बेंजोइक एसिड में इन बेंजीन सॉल्यूशन हमने देखा वो अपने नॉर्मल मोलर मास से जस्ट डबल हो जाते हैं. अब इसकी रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे अरेंज द फॉलोइंग सॉल्यूशन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर. अगर हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं तो हम उनके नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेक करेंगे. नंबर ऑफ पार्टिकल्स जिसके ज़्यादा है उसकी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी. यहाँ पे मैंने आपको ऑस्मोटिक प्रेशर दिया है. आई कुड हैव गिवन डेल्टा TB, डेल्टा TF और रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर. नाउ हियर वी ऑब्जर्व एल्यूमिनियम सल्फेट एंड पोटेशियम सल्फेट बोथ आर इलेक्ट्रोलाइट्स. तो इनकी I की वैल्यू ड्यू टू डिसोसिएशन 1 से ज़्यादा होगी और नेचुरली ऑस्मोटिक प्रेशर भी नॉर्मल से इंक्रीज हो जाएगा. वहीं पे यूरिया, इट इज़ अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इट विल नॉट डिकम्पोज. यहाँ पे I इक्वल टू 1, तो इसका नॉर्मल आएगा जो सबसे कम हो जाएगा. क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन सबकी बराबर है. इट होली डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स. सो osmotic pressure will be higher for aluminium sulfate followed by potassium sulfate and in last urea. और यहाँ पे अगर मैंने आपको बेंजोइक एसिड या इथेनॉइक एसिड देते तो वो यूरिया के भी बाद में आता. तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं. अब नेक्स्ट वीडियो में वी विल टॉक अबाउट abnormal molecular mass, degree of association, degree of dissociation. Till then, thank you.